Hello everyone. We are here with very important topic for anybody's life, that is presentation skills. What are presentation skills? What is a presentation? इसे जानने से पहले हम एक बहुत अच्छी सी saying है Confucius की. I would like to here discuss the superior man is modest in his speech but excels in his actions. A presentation refers to a formal kind of holistic communication for a specific purpose at a fixed time and a convenient venue and targeted at a chosen audience. इसमें कुछ शब्दों पर हमने अंडरलाइन किया है. प्रेजेंटेशन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है. सबसे पहले इनफॉर्मली यू डू नॉट गिव प्रेजेंटेशन, यू जस्ट एक्सप्रेस योर व्यूज़. ऑफ होलिस्टिक कम्युनिकेशन जिसमें हम सारी बातें कवर करते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट, वी कवर ऑल एस्पेक्ट्स इन दैट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़. Without any purpose, we do not give any presentation. That can be a gossip, that can be a normal conversation, but it will not be a presentation. तो यदि presentation है तो वो definitely एक specific purpose के लिए है. At a fixed time, at a convenient venue, venue's place, and a targeted chosen audience. What are the characteristics? जिन शब्दों पे हमने underline किया था, separately they themselves will become the characteristics of a presentation. It is given for a fixed audience. A free-for-all is not a presentation. It has to be formal in its approach. It has a fixed structure or layout. Presentation can never be haphazard. कुछ भी unorganized structure of communication हमारी presentation नहीं कहलाएगी. For better understanding, more audio-visual aids can be used in plenty. It is designed keeping in mind the needs and educational level of the audience. यदि हम अपनी सुपीरियॉरिटी को शो करने के लिए एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज़ द वन विच इज़ प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द ऑडियंस. एंड अ गुड प्रेजेंटेशन मस्ट इंगेज द ऑडियंस. ऑडियंस का दिमाग, ऑडियंस के ईयर्स कहीं और नहीं डिसइंगेज होना चाहिए अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो. अ प्रेजेंटेशन मस्ट हैव क्लैरिटी ऑफ थाट्स एज वेल एज एक्सप्रेशन. आप क्या बताना चाह रहे हैं, कंटेंट क्या है, कंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए स्पीकर के माइंड में, और साथ ही साथ उसे किस प्रकार से वो एक्सप्रेस कर रहा है ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट इज कंसाइजनेस. इट शुड नॉट बी कन्फ्यूजिंग फॉर द ऑडियंस. आप जो बता रहे हैं बिल्कुल प्रिसाइज हो और कंसाइज हो. द प्रेजेंटेशन मस्ट बी डिलीवर्ड प्रॉपरली. प्रॉपर डिलीवरी के लिए ज़रूरत है कि हमारा जो कंटेंट है वो प्रॉपर हो, phonetics proper हो. Phonetics here means the pronunciation must be proper and the grammar must also be proper. The correct grammar must be used in the communication. Next is it must be interesting. It must be made interesting for the audience so that आपकी audience glued रहे, अपनी सीट से हिले नहीं. The audience must be ready to listen to you as long as you are speaking. This is the effect of a good presentation. And of course, a presentation can always be good only when it is supplemented with non-verbal language, or we can say non-verbal communication. Now hereby we are discussing the 5-star strategy propounded by M.M. Monipally in the year 2001. The 5-star strategy says that the good presentation must cover 5 W's, which are why. That means what is the motive of presentation, why the presentation is being given. Who means who is the audience, who is the target whom we are talking to. Where means venue, where the presentation is going to be scheduled. वो जगह क्या होगी, वो स्थान क्या होगा जहाँ प्रेजेंटेशन हो रही है. When यानी कब, हम प्रेजेंटेशन का समय क्या होगा. And what means what is the subject matter of the presentation. That means what you are going to deliver during the presentation. Now the elements or dimensions of presentation. There are 4 elements of any presentation. They are audience, content delivery, and the presenter. Let's talk about the audience. The very first point is know thy audience. अपने audience को जानिए. You should know the people to whom you are going to address in advance. इससे आपका काम और आसान हो जाता है यदि आप अपनी ऑडियंस को, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को, उनकी सोच को समझते हैं और जानते हैं. सेकेंड इज़ गिव शेप टू योर थॉट्स. अपनी प्रेजेंटेशन को पहले ऑर्गेनाइज करिए.
अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरीके से डिज़ाइन करिए ताकि वो बिल्कुल लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड हो, जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन, देन कंक्लूजन एंड देन क्वेश्चन आंसर्स. Let's talk about how to give effective introduction. Rightly said by somebody, well begin is half done. शुरुआत अच्छी तो यानी आधा काम समझो हो गया. It is always given to create a positive impression on the minds of audience. Introduction is a time when you create a rapport with the audience. The following points must be kept in mind during the introduction. हमेशा ध्यान रखिए प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही आपके लिसनर, आपके ऑडियंस के अटेंशन को या तो ग्रैब करेगा या उनके अटेंशन को लूज़ कर देगा. सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट. कोशिश करिए अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी खुद की इंडिविजुअल वर्थ को प्रूव करें कि आप वास्तव में एक कॉम्पिटेंट फेलो हैं और जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो वास्तव में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या कंटेंट है. कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली. हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान आप ऑडियंस को फेस करें तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी झिझक के साथ अपने आप को प्रस्तुत करें. नाउ बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन. You discuss the thoughts, facts and figures. You can make use of the illustrations, case studies and role plays to make your presentation more effective. You should try to lead your audience believe in you, that whatever you are telling, that is absolutely correct. The presentation content in the body must be orderly arranged in a logical manner. कोशिश करिए कि जिस तथ्य को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जुड़ी हों. कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जाम्पल्स यदि आप दे सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं. कंक्लूजन. फिनिश योर प्रेजेंटेशन विद अ स्ट्रॉन्ग नोट. हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन के अंत में कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग नोट रखिए, स्ट्रॉन्ग नोट डिलीवर करिए जिससे वास्तव में आपकी ऑडियंस एक बार को आप सोचने को मजबूर हो जाए कि व्हाट यू हैव टोल्ड, इट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग इन अ पॉजिटिव मैनर. Say for example, nowadays everybody is talking about Third World War or everybody is talking about the war between various countries on one or the other issues. लेकिन सोचने की बात है, if we were to fight a nuclear war, who would win? So इस तरीके के मुद्दे यदि हम बात अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान करते हैं तो इससे भी हमारी प्रेजेंटेशन बहुत इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि आपकी ऑडियंस आपकी बात को और अच्छे से सुनती है और समझती है. Next, the ways of presentation giving. Of course, the presenter can mug up the contents, रट सकता है अपने presentation के contents को. दूसरा तरीका है रीड करें आप प्रेजेंटेशन, जब आप दे रहे हैं तो साथ में कंटेंट को रीड कर रहे हैं. और तीसरा तरीका है नोट्स बना लें और डिलीवर करें यूजिंग द ऑडियो विजुअल एड्स. Suggested is the third one, which is preparing notes well in advance and then deliver your presentation during the time given by the people. Now practicing before the presentation. यदि आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि उससे पहले एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें. प्रैक्टिस करने से सबसे अच्छा क्या होता है कि आपको जितने भी एरर्स हैं, जहाँ पर आप रुक रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो सब आप मिनिमाइज़ कर पाते हो. ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है आपको कंटेंट पर, अपनी डिलीवरी पर. और इसके अलावा जब एक्चुअल प्रेजेंटेशन आप देंगे तो उससे बेटर कंट्रोल आप डेवलप कर पाएंगे उस पर. ऑफ कोर्स आपकी जब प्रेजेंटेशन होगी वो एक नेचुरल और इजी प्रेजेंटेशन होगी जो सब लोग लाइक करेंगे. एंड ऑफ कोर्स द प्रैक्टिसिंग बिफोर प्रेजेंटेशन prepares you better for questions and answers session, which is the crux, which is the main part of any presentation. Use of non-verbal communication. जैसा हमने पैरा लैंग्वेज के अपनी पहली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू स्पीक दैन व्हाट यू स्पीक. आप क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस कंटेंट को किस प्रकार से डिलीवर कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान. द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रेजेंटिंग. योर क्लोथिंग, अपीयरेंस, योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, योर एटीट्यूड. ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है तो उस क्रिटिसिज्म को आप पॉजिटिवली लीजिए and respond accordingly. Your body language should be very confident, very appropriate according to the presentation. Use the spaced
means don't walk unnecessarily and maintain the correct posture for the presentation. यूज़ स्पेस को मैं थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी. अक्सर देखा गया है कि प्रेजेंटर्स जितनी भी स्पेस उन्हें मिलती है या तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते उस स्पेस का, दे कीप स्टैंडिंग एट वन प्लेस, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट. या वो प्रेजेंटर्स यदि इस्तेमाल करते हैं जगह को तो वो अननेसेसरली एक्स्ट्रा घूम घूम कर उस पर्टिकुलर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऑडियंस का ध्यान कंटेंट डिलीवरी से ज़्यादा मूवमेंट पर चला जाता है. तो हमेशा प्रेजेंटेशन के दौरान ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी स्पेस है वॉक करने के लिए या फॉर यूजिंग टू बी यूज्ड बाय द प्रेजेंटर, उसे आप अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द ग्रिलिंग टाइम, that is the question and answer session. A good speaker always takes the question and opportunity to further explain the point. यदि कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो उसे सबसे पहले ध्यान से सुनिए और फिर आंसर देना स्टार्ट करें. कोशिश करिए कि किसी भी क्वेश्चन पर आप हंसे नहीं. डू नॉट मॉक और jeer एनी क्वेश्चन, ट्रीट एवरी क्वेश्चन एज इम्पॉर्टेंट. हो सकता है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसे एक्नॉलेज करिए, पोलाइटली एक्सेप्ट करिए और कोशिश करिए कि आप बताएं बाद में. प्रेजेंटेशन के बाद आप उसका उत्तर ढूंढें और फिर से उस ऑडियंस की उस क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करें. डू नॉट बी अग्रेसिव और एंग्री इफ़ देयर इज सीमिंगली एन अनकम्फर्टेबल क्वेरी. हो सकता है प्रेजेंटेशन के दौरान आपकी ऑडियंस में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे जिसे आप आंसर करने में कंफर्टेबल नहीं हैं. बट कंफर्टेबल ना होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी ऑडियंस पर अग्रेसिव हो जाएं या नाराज़ हो जाएं. नो, टेक ऑल क्वेश्चंस पोलाइटली एंड हम्बली, बिकॉज if a question is being asked to you, that gives an extra opportunity to you to further explain what you want to explain. So I hope these skills or these tips can be some help to you in future for your better presentations. Thank you.